when the body is really vibrant and what you feed in your body, and if you have a movement pattern also, if you move also, and your thinking become clear. So it's like Yeah. body can't be looked like just in the shape. Body is every layer works. So everything works and everything what you are doing, but still if you are not happy, I judge people how they train. And I thought, is it making me better person? No, no. Mm. If I am always in this judgmental mind कि तुमने ये क्यों खाया, तुमने क्यों खाया, because it's their choice. I should worry about my choice, not everyone else choices. Yeah. तो Right. तभी ग्रोथ है. यस आपका मैम मैम आपके बायोग्राफी में मैंने देखा था एक चक्रा थेरेपिस्ट बोल के है. सो व्हाट इज द चक्रा थेरेपी? ये मैंने किया था. एक है यहाँ पे यूएस में है एनोडिया जूडिथ. So Anodia Judith जो है वो she lived in India for 20 years I think. And she developed this system of she does yoga, and with yoga she worked on chakra. So uska Okay. wo different phases. So she was a psychologist. So Eastern mind, Western body. Her book is there. This is a very good book, the Sevenfold of Chakra, and there is a lot of book which she has written. So I did her a lot of workshops and I attended a lot of her work. Yeah. And there is one which I mentioned which has helped me is there is a lady called um, Julia Cameron. Yeah. And she Okay. has written a lot of books again, and she has written one book, The Artist Way. So वो मैं बहुत फॉलो करती हूँ. उसमें उन्होंने कहा है कि हर सुबह उठ के 3 पेज लिखिए. सो वो 3 पेज कैसा लिखते हैं, और पेन और इससे लिखिए, बॉल पेन नहीं, मैं तो इंक वाले पेन से लिखती हूँ. और अपना नोटबुक, इससे बड़ा नोटबुक रहता मेरा, वो लेके मैं रोज सुबह सबसे पहला काम वही करती हूँ. तो 2 पेज आप लिखते हैं. It's a morning page, but initially you would start with morning page. आप mourn कीजिएगा, life is like this, and third page you address yourself, and then slowly you would see how it's a meditation tool again. So slowly you would see how it will change your outlook. So I was impacted by that. And then Sally Campton, she is not anymore. So she was one of the most renowned Devi bhakt, and she was like meditator. So I learned meditation from her. Then I have मेरी guru हैं कविता चिन्मय. So she is a Shakta. So उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा देवी का. So it's my spiritual side. These all works are my spiritual. But मैंने ये अपने अनुभव से मुझे ऐसा लगता है, when the body is really vibrant and what you feed in your body, and if you have a movement pattern also, if you move also, and your thinking become clear. So it's like Yeah. body can't be looked like just in the shape. Body is every layer works. So everything works and everything what you are doing, but still if you are not happy, you have no fun in life. Yeah, fun means कि आप कुछ अपने लिए नहीं करते हैं. जैसे जॉब लोग करता है तो कहता है हाँ मुझे बहुत पैसा मिल रहा है, ये मिल रहा है, मैंने गाड़ी खरीद लिया, मैंने ये. ऑनेस्टली अल्टीमेटली दूसरे के लिए काम कर रहे हैं. या सो एक घड़ी खरीद लिया, वो ज्यादा से ज्यादा खींच के कितना दिन खुशी देता है, 1 हफ्ता या 2 दिन 3 दिन. एक अच्छा ड्रेस खरीद लिया, अरे ये तो बहुत खरीदना था, खरीद लिया, द डिजायर. बट इफ यू क्रिएट समथिंग जिसमें आपका दिल लगा है, जो क्रिएट कर रहे हैं आप, तब क्या होता है, वो क्रिएशन में आपको ऐसा it gives you such a pleasure. That is the divine pleasure which you feel like, oh my god, I created this. हाँ. तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज के साथ, जब बॉडी को, जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं या
किसी बीमारी से निकलना चाहते हैं, सबसे पहले तो अपनी अंदर अपने को क्वेश्चन कीजिए, दूसरों को बदलने की तो जरूरत ही नहीं है। बिकॉज वेन एवर माई क्लाइंट्स कम्स टू मी एंड दे वुड से, ओ मेरा हस्बैंड ऐसा करता, मेरा बेटा ऐसा, मेरी सास ऐसी, मेरी ससुर, मैंने कहा वो you just have to know you can't help anyone except you. You Right. can't help anyone. आप मोटे होंगे तो कोई कहेगा हाथी है, आप दुबले हो जाएंगे तो मुझे ये भी सुनने मिला था, आप दुबले हो जाएंगे तो कोई कहेगा वो आम की गुठली है। सो आप किसको किसको आप फेयर बताइएगा। हाँ, आप फिर थोड़ा मोटा हो जाइए, फिर आप दुबले हो जाइए, यू नो इट्स नॉट। सो द थिंग इज you should not involve into any of these because these are energy leakage. The more we energy leak, the bankrupt we become. बिकॉज बैंकक्रप्ट पैसा घर जैसे हम रेनी डेज के लिए रखते हैं, अगर ये सारी प्रैक्टिसेस आप करते हैं, जैसे मॉर्निंग पेजेस, मेडिटेशन किए, योगा किए, घूमने गए, टहले, कुछ बनाए, कुछ क्रिएट किए, कुछ कुछ जो आपको सही लगता है, जो आपके लिए वो है, आप देखिएगा धीरे धीरे जिस दिन आप में चैलेंजेस आपके लाइफ में आएंगे, सब दिन तो एक होता नहीं है, जब चैलेंजेस आते हैं ना, देन यू नॉक इट। सो मैं मन में सोचती हूँ, मेरी जैसे राइटिंग हैबिट थी, ड्राइंग हैबिट थी, आई लव नेचर, मुझे बहुत अच्छा लगता है बाहर। हाँ, तो आई थिंक दीज आर माई रिसोर्सेस एंड टॉकिंग टू लाइक माइंडेड पीपल, दीज आर रिसोर्सेस। यू डोंट टॉक टू पीपल हु वुड ड्रेन योर एनर्जी। आप उसको फ्रेंड बोल लीजिए, रिलेटिव बोल लीजिए, पर आप बात वैसे ही लोगों से करना पसंद करेंगे जब आप सही इसमें होंगे, जो जिसका माइंडसेट इज देयर जस्ट टू बी विथ यू, नॉट टू चेंज एनीथिंग इन यू, जस्ट टू बी विथ यू। जो फ्री होता है वो डरता नहीं है, उसको फियर नहीं होता। मुझे अब फियर नहीं होता। Right. मुझे जब लोग बैक क्लैशिंग करते हैं, लिखते हैं, और खासकर बहुत से मर्द भी लिखते हैं ऐसा, बहुत गंदी सी चीज लिखते हैं, पर वो मुझे ऐसा होता है ना, मुझे ना कोई बहुत बड़ाई बहुत छू जाती है, ना कोई बुराई मुझे बहुत छू जाती है। मुझे लगता है कि दिस इज माय फोकस इज हियर, माय फोकस इज नॉट दिस और दिस, माय फोकस इज हियर, आई एम फ्री। फ्री का एक ये भी होता है, आर यू फ्री एज अ वाइफ, आर यू फ्री एज अ मदर, आर यू फ्री एज अ डॉटर, आर यू फ्री। उसका क्या मतलब होता है, जो एंड स्पेशली इन इंडियन सोसाइटी वी वॉच सो मेनी मूवीज, मैं भी देखती हूँ, बहुत मूवीज देखती हूँ, और वो मूवी हमें ढाल देता है Mhm. कि जो अच्छी औरतें हैं उनका बाल समेटा होना चाहिए, ये सबसे सुबह वही उठेंगी, और सुबह उठते ही वो आंख उठते ही प्रेयर करेंगी, वो किसी से ऊंचा नहीं बोलेंगी, वो ऐसे समेट के बैठेंगी, वो ऐसे करेंगी, वो, एंड दैट इज द इमेज दैट इज स्लोली बिल्ड अप। बट व्हाट इज, डू यू वांट टू बी राइट? आप कितना भी कर दीजिए अपने बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, सास ससुर, माँ बाप, भाई बहन, सबके लिए, if they have any issue with you, it will still exist. Yeah. So Right. what you have to think, what do you want to be right, or do you want to be you are right? Right. So what does it do when you say you are right? It gives you freedom. The conversation stop. Very nice. तुम बहुत लालची हो, हाँ, yeah, I am. तुम Right. बहुत दिखाने वाली हो, तुमको ऐसा कपड़ा नहीं पहना, हाँ, एकदम सही बोला. That's it. Because you don't want your energy to be spent in everywhere. You want your energy to be cultivated in what you want. तो आपका फोकस हुआ ना। अभी मैं जब पढ़ती थी तब आई वुड, यू नो, पीपल, बिकॉज पीपल डोंट अंडरस्टैंड यू, तुम्हारे पाथ को नहीं जान रहे हैं। सो हियर देयर आर लॉट ऑफ इंडियंस आल्सो, या, सो मोस्ट ऑफ द इंडियंस, आई एम सेइंग इंडियंस आर डूइंग रियली गुड, बट most of the women when they come, because हमारे इतनी close इसमें सोसाइटी में हम रहे, ये रहे, तो they feel like when they are here, अच्छा ड्रिंक करें, कपड़ा पहने, ये करें, वैसा करें, and that's also okay, because if that is your choice, go ahead and do it. तो पार्टी करें, हर वीकेंड में पार्टी हो रहा है, if you are not going for the party, you are the boring one, तुम्हारी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है। But what I felt, because मैं काम करती थी सैटरडे और संडे, वीकडेज में मैं काम नहीं कर सकती थी, बच्चों को देखना होता था, सो आई यूज्ड टू वर्क सैटरडे संडे, और पूरे हफ्ते पढ़ती थी, जिम जाती थी, सैटरडे संडे काम करती थी, तो आई डोंट गेट अपॉर्चुनिटी टू मिंगल विद पीपल। हाँ, तो मुझे बहुत से लोग बोलते थे कि, एक बार किसी ने पूछा मुझे कि डोंट यू थिंक योर लाइफ हैज नथिंग टू ऑफर
मतलब मैं, because I'm very close to you. I said, you are right. My life has nothing to offer. You know, I just, पर मैं उसको कैसे समझा सकती हूँ कि मुझे ये लाइफ पसंद है? तो ये देखिए, ये अब किसी को आप समझाने लगे तो आपका आधा घंटा वहीं चला गया, 1 घंटा, उसके बाद भी वो आदमी समझेगा नहीं। आप घर आइएगा, कहिएगा कि अरे मैं क्यों पढ़ रही हूँ, मैं क्यों कर रही हूँ, बाकी लोग तो इतना खुश है, मुझे वो बात Waste में of जाना ही time नहीं। and energy. या दिस इज एनर्जी लीकेज। पीपल हु टॉक, वेस्ट ऑफ एनर्जी कर रहे हैं। yeah, Yes. people talk about their husbands. हाँ, oh, मेरा हस्बैंड ये किया, मेरा हस्बैंड, हाँ मेरा भी हस्बैंड किया ये किया, we all do that. But I felt that these small talks takes out your energy. हस्बैंड किया, अच्छे फ्रेंड्स को भी मैं बोलती हूँ 3 ऑप्शन है, छोड़ दो, उसी शादी में रहो, रोज बात करो लोगों से और क्रिप करो। तीसरा, evolve yourself in that marriage. Can you do that? It is hard. The third one is very hard because you have to stay there and keep evolving. And when you evolve, knowingly, unknowingly, the other person who is there will also evolve. So, जब मैरिज पे मैं बात करती हूँ, लोग कहते हैं मैरिज के अगेंस्ट हो। आई एम नॉट अगेंस्ट मैरिज, बट आर वी सो इवॉल्व दैट वी कैन सी अदर पर्सन की वो मेरा कमाया हुआ चीज नहीं है? बिकॉज पीपल गेट अपसेट, वीकेंड नहीं बताया मेरे साथ, मेरे से बात नहीं किया, मुझे बाजार नहीं ले गया, मुझे फलाना नहीं किया। व्हाई आर वी कंप्लेनिंग? बिकॉज वी आर नॉट फुल। बाजार नहीं ले गया, मुझे पैर दिया ना भगवान, जागती हूँ, शॉपिंग करके आ जाऊंगी। Why I need someone to make me happy? This is freedom. Right. पैसा कमाना is freedom. हम लोग के जनरेशन में इतना जोर नहीं दिया जाता था, पर लकीली इस जनरेशन में, और मैं इंडिया में भी बच्चों को देख रही हूँ कि everyone is working and I feel so happy that they are working. थोड़ा ही पैसा कमाओ, पर अपना पैसा कमाओ, कि कोई ये नहीं तुमसे पूछे कि why did you spend that, और ये तुम्हें मांगने की, because you know this is hierarchy. जब हम नहीं कमा रहे हैं और हम कहीं पे घर में, आप दाई बन के खटिए, सब कुछ कीजिए, बट दैट्स नॉट योर अर्निंग, बिकॉज पीपल डोंट सी इट एज अर्निंग। आप निकल जाइए बाहर और फिर आपके चाइल्ड माइंडर आए घर में और खाना, तब व्हेन पीपल वुड स्टार्ट कैलकुलेटिंग कि दिस इज द मनी। सो वुमेन शुड नो दैट अगर वो घर में भी रह रही हैं, आई एम नॉट सेइंग दैट एवरीवन शुड जंप आउट एंड वर्क, बट इफ दे आर सिटिंग एट होम आल्सो, they should know they are earning. वो जो पैसा जो खाने में बाहर नहीं लग रहा है, they are saving that money and they should ask for a salary. छोटी सैलरी, मुझे 1000 रुपया दे दो, पर हर महीने जब तुम्हें पैसा मिलता है मेरे अकाउंट में ये पैसा डाल दो। What difference would it make for a woman? उसको वो नहीं लगेगा कि वो भीख मांग रही है, उसको वो ये नहीं लगेगा कि वो मार्केट में जा रही है तो कोई चीज वो नहीं खरीद सकती है। She will feel she has earned. So give them that respect. शादी लोग कहते हैं शादी करना, पर शादी करके किसी एक दाई को नहीं लाना ना, कि वो आपकी बीमारी में आपको देखे इसको। And this is where I am against it, because when people say, मैंने कहा तब तो बिना शादी के लड़कियां अच्छी है ना, या लड़के भी अच्छे हैं। They don't have anyone who is on their head कि मुझे ये खरीद दो, मुझे वो खरीद दो, तुम भी खुश रहो, वो भी खुश रहेगी। But if you are marrying, first fool yourself with everything what desire is there, and then you are not competing, then you are not looking for that from other person. You will grow, you will be free, you will be independent. औरतों को फ्रीडम मिला है, पर बहुत सी औरतें उस फ्रीडम को नहीं समझ रही हैं। They feel freedom is something different, but freedom is this, where you are not affected, where you are really syncing with the energy. दो व्यक्ति हम लोग रहते हैं, we don't sit hand in hand or you know, the romantic way. No, nothing is happening like that. But the thing is, I feel his presence. When we are sitting, it's a quality time. Not like तुम 24 घंटे में बर्दाश्त ही नहीं कर सकती हूँ। You know, it's something like, because I want to do something, he wants to do something. We all are born to do something.
We are not just born to come together, have babies, and have a lovely life and just tata bye bye. Nahi. You know, hai life to do something. And we all have that potential, that light within us. So freedom is this, and never prove yourself right. Never prove yourself right. Because itne conversation ke baad bhi there would be people who would say, I am not right. I agree, I am not right. Yeah. What does it make me? Immediately when I say that, I feel free. I don't Right. take your comment. I'm wrong. Yeah, that's okay. I'm not right. But I am free. You're not holding me. Yes. I think, ma'am, you are the best example of woman empowerment. इसका मीनिंग ही यही है कि हमें अपनी ही थॉट प्रोसेस से खुद की मीन्स मैंने जो आपका अभी तक जर्नी सुना है, समझा है, आपने खुद से किसी और से नहीं किया है फाइट। आपने खुद ही के खुद से खुद का फाइट करके आप इस लेवल पर आई हैं। सो दैट इज ग्रेट एग्जांपल ऑफ वुमन एम्पावरमेंट। वरना जनरली लोग सोचते हैं कि कुछ लोगों के लिए कर दिया, कुछ ये हो गया, दैट इज डिफरेंट। जब हम खुद से खुद के लिए खड़े होते हैं और अपने माइंडसेट को इस लेवल पर लेकर आते हैं, दैट इज ग्रेट एग्जांपल। थोड़ा सा जब भी कुछ इश्यूज होते हैं ना, जैसे देखिए परफेक्ट मैं भी नहीं हूँ, अभी भी आई एम स्ट्रगलिंग विथ लॉट ऑफ थिंग, पर दिस इज अ ऑनगोइंग प्रोसेस. यू हैव टू, when you are triggered by something in a relationship, in a work atmosphere, or in social media, when you are triggered by something, what should you do? हाँ, जैसे बहुत बहुत छोटी सी चीज है, सोशल मीडिया ही है, उसमें आपको कोई कुछ लिख देता है या आपको कोई कुछ मैसेज देता है, पहला रिएक्शन क्या होता है? खराब देता है तो पहला रिएक्शन होता है, ओ माय गॉड. हाँ, और तब हम सोचते हैं हम कुछ करें कि हम प्रूफ करें. हाँ, हम कुछ, पर अगर आप उससे 2 कदम पीछे हट के देखिएगा और सोचिएगा कि ये किसने दिया? किसी ने दिया. यू डोंट नो दैट पर्सन. बट दैट पर्सन कौन माइंडसेट है उसका, कैसा उसका क्या है, यू डोंट नो एनीथिंग. डू यू वांट टू इन्वॉल्व विथ हिम? आई डोंट. या मेरे अंदर तुरंत आता है आई डोंट. हाँ, एकदम मुझे ऐसा होता है कि आई डोंट. इफ दोज पीपल आर माई ओन पीपल, my own relatives, my own people, I listen to them, and I listen and I just think, should I involve or should I not involve? This, how is this person important to me? Is my life is with this person? मैं सांस इस आदमी की वजह से ले रही हूँ? No, I'm not. Yeah. So I take 2 steps back. Let that person think whatever he wants to think, because he has freedom to think that, and I have got freedom to think what I am. Yeah. Conversation stops. बाहर जाके वो बोल सकता है कि she has nothing to say, you know, it was hopeless. Yeah. But you don't know what I am creating here. कोई तुम्हें देख के कहेगा अरे मोटी हो गई. हाँ, you know, the minute people, women especially, they see each other, वो मोटी हो गई, do you know what she was going through? No, you don't know what she was going through. She must have done PhD in that time. She must have grieved for her parents. She must have given birth to a baby. She must have done something, or she must have been working, you know, in a disease condition. She must be there for 2 years or something. She has gained weight, whatever was the reason. Yeah. So before you speak, and when I say that to anyone, I immediately see, why did I do that? Because this is our conditioning. It comes immediately. But the more you are watchful, why I'm doing this, why I'm saying this, why I'm triggered by this, why? You would find the answer. And then when you would approach, like 4 people are sitting and suddenly you look at someone and you say, I don't like this person. That person has done nothing to you, but you don't like that person. Yeah. That's your problem, not his or her problem. Yeah. So you go back and you say, why? So this thought would come because this is our conditioning.
The thought would come, मोटा है, पतला है, दुबला है, मुस्लिम है, हिंदू है, ईसाई है, गंदा है, अच्छा है. These all are conditioning. Can you see beyond that? So go 2 steps back and see who is this person. And one of my, I learned Tai Chi also with one of the teacher, yoga with Tai Chi. So she said something very nice. When she feels like any person who she is judging, she would say that he's my brother. She's my sister. Judgment stop. Isn't it beautiful? Right. And when this stop, we grow. Because इतना कचरा लेना क्यों? मैम एक क्वेश्चन और है, लाइक आपने सोशल मीडिया पर कब आपको लगा कि मुझे आना चाहिए, मीन्स आपकी जर्नी कब स्टार्ट हुई? वी हैव ये आई थिंक आपके 3 पेजेस जो है फेसबुक पर हैं, 3 पेजेस ऑन फेसबुक, आप इंस्टाग्राम पर हैं, आप यूट्यूब पर हैं, एंड यू हैव मैम हैव अ पॉडकास्ट, अर्चना जी हैव अ पॉडकास्ट लाइक द yoga नेम chai and a इज dog. या. सो वेरी फर्स्ट कब आपको लगा कि मुझे अब इस पर आना चाहिए? कब आपने स्टार्ट किया सोशल मीडिया Because it again started with writing, though I was doing everything. तो जब Facebook launch हुआ ना, तो I remember there was a lady, she sent me a Facebook friend message. तो वो मैंने accept किया. And because मैं लिखती बहुत थी, बहुत, मुझे रोज कुछ आता था दिमाग में, तो मैं लिखती थी. तो मुझे लगता था मैं जो ये थॉट लिख रही हूँ ना, तो ये मैं क्यों नहीं कहीं लिख दूं. हाँ, तो फेसबुक एक प्लेटफॉर्म ऐसा मुझे मिला, तो मैं लिखना शुरू कर दी उसमें. एंड आई वाज नॉट सो गुड विथ माय इंग्लिश, माय ग्रामर वाज नॉट सो गुड कि बहुत अच्छा कंस्ट्रक्शन लगे या सेंटेंस, बट मैं लिखती रहती थी. हाँ, तो मुझे ये भी बोलते थे बहुत से लोग. हाँ, एंड सम पीपल वी आर वेरी पॉजिटिव अबाउट इट, बट सम पीपल वुड से दैट कि ऐसा लिखा, ये लिखा. बट देयर वर मेनी पीपल हु जस्ट लव्ड माय राइटिंग. तो मैंने फिर एक पेज बनाया, ब्रीथ मूव लव, फेसबुक पे. तो वो पेज जब बनाया, उसमें लिखती रहती थी, और जब कभी मैं नहीं लिखी ना, तो मुझे मैसेज आते थे कि आपने कुछ डाला नहीं. तो आई थॉट कि ओ पीपल आर रीडिंग दिस, तो मैं वो उसमें फिर लिखने लगी. फिर कभी इधर लिख देती, कभी, तो वो लिखना मेरा बहुत दिन से था. तो आई एंड देन बिकॉज आई ऑलवेज यूज टू एक्सरसाइज, वॉक पे जाती थी, ये जाती थी, तो कभी कभी मैं वीडियो भी डाल देती थी कि मैं वॉक पे जा रही हूँ, तो एक्सरसाइज कर रही हूँ, फलाना कर रही हूँ. खाना मुझे हमेशा, आई एंजॉयड मेकिंग न्यूट्रिशियस फूड, तो मैं उसका भी फोटो डालती थी. ये तो अब इतना पॉपुलर, मैं तो बहुत साल से डालती आ रही थी कि कभी ये बनाया, कभी वो बनाया, सब डाल देती थी. एंड पीपल हु आर लाइक माय हस्बैंड एंड माय चिल्ड्रन, वो लोग को भी लगता था कि मम्मा को हुआ क्या, मम्मा सब कुछ करती रहती है और सब डालती रहती है. आई एंजॉय द प्रोसेस. आई नेवर थिंक अबाउट व्हाट इज द एंड. मुझे ये कभी समझ नहीं आता. सो इन दैट प्रोसेस आई गॉट अप्रोच्ड बाय समवन हु सेड वी आर राइटिंग अ बुक विद डिफरेंट ऑथर्स, वुड यू राइट अ चैप्टर ऑन दैट. I thought I would write a chapter. I said, yeah, I can. मेरे में ये चीज है. If I know that I can do it, I would say yes, I can. Yeah. और थोड़ा सा पुश करती हूँ मैं. तो मैंने कहा yeah, I can. So मैंने उसमें एक चैप्टर लिखा था Beyond Self Sabotage. सो वो मैंने ये लिखा था कि जैसे जब मैं वॉक पे जाती थी, यहाँ मैं रनिंग की हूँ, हाफ मैराथन मैंने बहुत किया है. सो मैं रनिंग करती थी, ये करती थी, तो मुझे वुड्स था मेरे घर के बगल में. जब मैं बाहर निकलती थी तो मैं सोचती थी कि व्हाई वुमेन ऑफ माय एज डजंट डू दिस इन इंडिया. मुझे ये बहुत क्यूरियोसिटी होता था, और मुझे लगता था, मैं बहुत बार ये भी सोचती थी कि जो मुझे जानने वाले वो कहेंगे कैसी पागल है, कहाँ-कहाँ घूमती रहती है, लिटरली ऐसी-ऐसी जगह जाती है जहाँ यहाँ की भी औरतें बहुत कम जाएँ. मैं कहाँ-कहाँ चली जाती थी, दौड़ते हुए, टहलते हुए. तो so this is in our mind. Yeah, we carry that. Though I have moved from India, but I'm still carrying some of the things there. So beyond self-sabotage, who are you?
तो उस पर मैंने वो चैप्टर लिखा था। फिर देन आई, बिकॉज़ मैं रोज़ सुबह लिखती थी, तो मेरे हस्बैंड एक दिन बोले, ये ही वाज़ दैट टाइम ही यूज्ड टू डू लॉट ऑफ फोटोग्राफी। तो बोले एक बुक हम लोग ऐसे सेल्फ पब्लिश करते हैं जिसमें मेरा फ़ोटो और तुम्हारा कोट हो। मैंने कहा हाँ, चलेगा ना। कोई एडिटिंग वगैरह करने वाला नहीं था। वी डिड इट आवर ओन और वो एक पब्लिश कर दिया छोटा-सा। एंड आई ऑलवेज़ वांट टू राइट अ बुक। मुझे हमेशा लगता है कि एक किताब मैं लिखूँ, पर आई एम स्टिल नॉट देयर, एंड आई कंप्लीटली बिलीव इन दिस दैट व्हेन द टाइम कम्स थिंग्स हैपन। या पर उसके लिए एफर्ट मुझे करना होगा, ये भी मैं जानती हूँ। सो आई हैव ऑलवेज पोस्टेड, इंस्टाग्राम में भी मैं पोस्ट करती थी, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल हु फॉलो मी आर फ्रॉम द फिटनेस वर्ल्ड और योगा और समथिंग। बट मैं ये देखती थी कि इंग्लिश में कंटेंट बहुत अच्छे अच्छे हैं, हिंदी में बहुत कम है। तो मुझे ये Okay. हमेशा लगता था कि बात ये जो मैं कर रही हूँ, ये समझने वाले होने चाहिए जो हिंदी केवल समझते हैं, वो इंग्लिश नहीं समझते उतना। I will lose the English followers, because when I am speaking in Hindi, they don't follow me because they don't understand what I am speaking. तो मुझे लगा हिंदी में, एंड तो उस, और ये इसलिए भी मैंने नहीं किया था कि मुझे बहुत फॉलोअर्स मिले या क्या। आई दैट डे व्हेन आई वोक अप एंड आई हैड ब्रेकफास्ट एंड आई जस्ट फील लाइक व्हाई वुमेन आर सो स्टक। मैं जिससे बात करती हूँ, जो क्लाइंट आती है, वो दे फील सो स्टक। व्हाई दे आर सो स्टक? Then I just felt like they don't heal because they don't, and when we don't heal, we don't help other women to heal too. Yeah. मैं अगर नहीं ये सोचूंगी तो मैं अपने बच्चों की लाइफ को वीडियो में देखती रहूंगी। बहुत से पेरेंट्स हैं जो बच्चों की लाइफ को वीडियो में देखते रहते हैं, वो उठी कब, बैठी कब, खाई कब, घूमी कब। नॉट फॉर मी। सो ये इस तरीके से मेरा जर्नी वीडियो, और मैं बना तो बहुत साल से रही हूँ। Right. Yeah. So basically, मैम जैसे कि आप अभी यूके में हैं, इफ आप अगर इंडिया में रहते हाँ, तो डोंट यू थिंक कि उसका लोगों का परसेप्शन और आपका कि थोड़ा बहुत सोचने का परसेप्शन थोड़ा चेंज होता है? हो सकता है, क्योंकि देखिए एक चीज तो है ना Are you कि getting? एक बहुत जब मैं इंडिया में भी थी तो मैं वेव के अगेंस्ट ही तैरती थी, ये मुझे पता है। मुझे बहुत लोग नहीं पसंद करते थे बिकॉज आई वॉज ऑलवेज लाइक, आई वॉन्टेड टू प्लीज पीपल, पर मुझे ऐसा हमेशा से लगता था कि देर इज समथिंग विच इज मिसिंग। पार्टी भी कर लूं, ये कर लूं, पर मुझे लगता था देर इज समथिंग विच इज मिसिंग, देर इज समथिंग विच इज मिसिंग इन ऑल ऑफ अस, एंड वी ऑल ऑफ अस आर वेरी इंटेलिजेंट। पर ये मैं जरूर कहूंगी, जब मैं इस कंट्री में आई, तो देखिए मैं यही बता रही थी कि जब इस कंट्री में बहुत से लोग आते हैं तो दे फील दैट देर इज लॉट ऑफ फ्रीडम इन लॉट ऑफ वे। आप रात रात भर बाहर रह सकते हैं, देर आर लॉट ऑफ क्लब्स, ये एवरीवन इज अट्रैक्टेड विद समथिंग और द अदर। हाँ, और बहुत कुछ आप कर सकते हैं, बहुत कुछ आप कर सकते हैं। आपकी फैमिली है नहीं, मतलब एक्सटेंडेड फैमिली रहती नहीं है, ये नहीं है, बहुत कुछ कर सकते हैं। पर माय फोकस वाज नॉट दैट। हाँ, और मुझे ऐसा लगा ये एक्सपोजर ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, क्योंकि इंडिया में मैं जब बच्चे हो गए थे तो, और मैं रनिंग करती, लोग कहते थे अब इसको रनिंग करने की क्या जरूरत है, बच्चे हैं, शादीशुदा है, किसके लिए अपना डे बना रही है। दिस इज व्हाट आई हर्ड फ्रॉम पीपल हु वेयर एजुकेटेड। अनपढ़ लोग की बात मैं नहीं कर रही हूँ, एजुकेटेड पीपल। पर जब मैं यहाँ आई ना तो मुझे वो कॉन्सेप्ट था कि मैं तो बुरी हूँ, बच्चे मेरे छोटे छोटे थे, और मैं आई तो एक हमारे सामने रहता था, वो क्रॉस कंट्री करता था, तो मैंने उनसे कहा कि मुझे बहुत पसंद है ऐसे बाहर जाना, रनिंग वगैरह। तो वो दूसरे दिन पहुंच गया, कॉल बेल बजा के कहा चलो क्रॉस कंट्री में। मैं बोली ये तो कैसा आदमी है कि एक दिन बोली आज ही आ गया। तो मैंने कहा नहीं नहीं, मैं तो अब बहुत उम्र वाली हूँ, मैं नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि बच्चे मेरे छोटे हैं, ये बिकॉज आई फेल्ट लाइक। तो वो बोलता है, वो हंस के बोलता है अगर तुम उम्र वाली हो तो मैं तो मर ही गया, बिकॉज ही वॉज वेरी ओल्ड। okay. तो ये मुझे जरूर फायदा हुआ इस कंट्री में। जो मैंने पढ़ाई लिखाई सब कुछ किया ना, बिना क्योस के किया मैंने। नोबडी वाज जजिंग मी फॉर दैट।
वहाँ रहने पे बहुत से आपके रिश्तेदार हैं, ये हैं, अब फलाना करके क्या करेगी, अब वो करके क्या करेगी, अब इसको क्या धुन सवार हुआ है, वो सुनने को मुझे नहीं मिलता था। सो माय ग्रोथ वाज वेरी डिफरेंट। हम्म, लेकिन ये मुझे पता था कि राइट। इंडिया में भी मैं बैठती नहीं, आई वुड हैव डन, और मैं कर रही थी, वहां भी मैं कर रही थी। पर इसको थोड़ा सा इसका आउटलुक चेंज हुआ, बिकॉज आई सी अ डिफरेंट साइड ऑफ द वर्ल्ड, डिफरेंट साइड ऑफ वुमेन, हाउ दे आर लिविंग। हाँ, उनका उनकी उनकी उनसे जब मैं बात करती हूँ तो पूरे दिन जो हम तीनों टाइम का खाना के लिए परेशान रहते हैं, when I talk to them I can get an insight. Food is not everything. You have to live your life too. Right. रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी मैं देखती हूँ, माय सन हैज गॉट अ डॉटर, 2 महीने की लड़की है। द वे दे डिस्ट्रीब्यूट द वर्क बिटवीन देम, मतलब इतना काम दोनों मिलके करते हैं, तो आई जस्ट फील लाइक दीज ऑल आर, अगर आप ओपन होंगे तभी सीखिएगा ना। अगर मैं वही बैठी रहूंगी, वही पुराने विचार वाली कि मेरा बेटा क्यों करे, वो क्यों करे, वो ऐसे क्यों किया, मुझे नहीं फर्क पड़ता कौन रात में उठा, कौन खाना बनाया, कौन नहीं सोया, मुझे नहीं फर्क पड़ता। दे आर एडल्ट, दे हैव देयर लाइफ। तो ये जरूर फायदा हुआ मुझे इस कंट्री में आने से, एंड देयर इज नो प्रेशर ऑन माय डॉटर ऑल्सो, बिकॉज व्हेन अ मदर इज स्ट्रांग, कोई बोल के देख ले, वो शादी नहीं करेगी, इट्स हर लाइफ, इफ शी वांट्स शी विल। मैं शादी के अगेंस्ट मैं कभी भी नहीं रही हूँ, but the thing is if she wants, she finds somewhere, because I want her to know herself first, who she is as a person, and that's, पर वहां शायद रहती तो प्रेशर बहुत होता होगा वहां तो। Right. देखिए, अब आपके बच्चे का हो नहीं हो, आप दूसरे के बच्चों के लिए बहुत परेशान होते हैं, उसका आईआईटी में क्यों नहीं हुआ, उसका लॉ में क्यों नहीं हुआ, उसका ये। सो मे बी आई वाज लकी इन दैट वे। तो देखिए, जो आई एम अ रिलीजियस पर्सन, सो आई फील लाइक भगवान एक पोर्शन अगर बहुत उलझा देता है ना, तो दूसरा पोर्शन थोड़ा सुलझा देता है। Right. सो आई इट्स नॉट माय क्रेडिट, आई फील लाइक स्लो कहीं कराता है, कहीं तेज करा देता है, तेज करा के फिर स्लो करा देता है, बिकॉज दिस इज हाउ वी कैन टेक इट, दिस मच हाउ वी कैन टेक इट। आज इतना फॉलोअर्स बढ़ा दिया, हाँ, कल को एक पोस्ट से सारे फॉलोअर्स नीचे कर दे सकते हैं, एंड दैट्स आल्सो ओके। आर यू रेडी फॉर दैट? यस, आई एम रेडी फॉर दैट। I don't feel like this is my life. Life is much more than this, na? Right. That is great. बहुत And अच्छी one last बात। question, ma'am. Yes, Rana. हाँ, nowadays क्या होता है कि ना, टू बिकम इंडिपेंडेंट, मैंने इन सब चीजों में परसेप्शन अलग होगा, आप दोनों का शायद अलग होगा। अ, जो वुमेन्स है टू बिकम इंडिपेंडेंट, वो लोग अभी चल रहा है ऐसा कि वो कुछ रिच लोग के साथ मैरिज कर रहे हैं, देन उसके बाद 1-2 साल के बाद दे गॉट डाइवोर्स, एंड जो एलिमनी मिलता है तो वो फाइनेंशियली कहीं ना कहीं फ्रीडम मिल जाता है। तो मैं लाइक कि वो वाला सिचुएशन यूज कर रहे हैं, ऑप्शन यूज कर रहे हैं टू बिकम फाइनेंशियली फ्रीडम। सो आपका उसमें क्या कहना है? देखिए, एक चीज तो ये आपको समझना पड़ेगा, औरतों को अभी तक अगर आप आज भी देखिएगा तो दे आर द सेकेंडरी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब बहुत शोषण किसी चीज का होता है ना, और जब वो फिर पलटता है, तो उसमें खामी बहुत होती है, उसमें खामी भी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो औरतें, बहुत से केसेस अब आ रहे हैं जिसमें कि औरतें क्लेम करती हैं डाउरी के लिए, ये मतलब कि उन्होंने डाउरी लिया, मुझे ये किया, झूठ सच बहुत कुछ होता होगा। I personally feel that we can't do anything on this. We can just think about, ये सृष्टि है, जैसे जैसे भगवान ने विनाश करते हैं सब कुछ और फिर उसको क्रिएट करते हैं, विनाश करते हैं, तो ये एक विनाश का भी तरीका है कि जिस तरीके की बुद्धि जिसको दे रहे हैं, वो पूरा सब कुछ अच्छा खासा विनाश करके जाती हैं। एंड यू नेवर नो, बिकॉज दिस इज, ये जो
इतने साल से जो उत्पीड़न हो रहा था कि मतलब लड़कियां मारी, आज भी मारी दी जाती हैं, गले काट दिए जाते हैं, फलाना हो जाता है, टिकाना हो जाता है, पीपल से हाँ मर गई, खत्म, दैट्स इट। तो इसका कहीं ना कहीं तो निकलेगा ना। जो भी चीज जो दुनिया में हमें अभी लग रहा है कि बैलेंस नहीं है, वो कभी बैलेंस नहीं था। हाँ, तो पर्सनली आई फील दिस इज, आई एम नॉट सेइंग दिस इज राइट थिंग, definitely I'm not saying this is right thing, but creation and destruction is the way of प्रकृति। वो होगा ही होगा। जितना शोषण हुआ है तो उसका कुछ ना कुछ तो खामी निकलेगा। लेकिन क्या है, एज अ वुमेन आई पर्सनली फील कि जब हम एज अ वुमेन बिकम फ्री इन दिस वे, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट नाउ हियर, वेयर आई नो दैट फ्रीडम इज नॉट अबाउट स्नैचिंग, झूठ सच बोल के इधर से पैसा ले लिए, उधर से बटोर लिए, ये कर लिए, that's not freedom. That is something like you are doing the same thing to someone. And that's Right. disgraceful. But who are we to say that disgraceful? That person has to know that this is disgraceful. पर उस इसमें जो इस तरीके का काम करते हैं ना, you would see that maybe they will thrive in this life. I don't know about that. But आगे अपना आप जब रात में सोते हो तो आप इस तरीके से सोते होंगे ना कि I have done my part today. I have not cheated. I have not done this. I have not done this. Right. I am fair. Am I honest? Am I truthful? Take your responsibility. So when you are taking your responsibility, and if you have a daughter, or if you are raising any woman around you, कोई बच्ची आपके बगल में है, she will see you, she will get your energy. आपकी वाइफ हो या आपकी गर्लफ्रेंड हो, जो भी हो, अगर वो आपके साथ है, उनका वैसा सोच होगा, they will get. So everything start from you. Right. अब जो कर रहे हैं, अभी Right. देखिए जो रेप ही कर देते हैं, इतनी छोटी छोटी लड़कियों का रेप कर देते हैं, इतने सारे मिलके कर देते हैं, where is they going wrong? Because it's, वो एक कहते हैं ना कि जैसे अपनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी मुझे किसी ने कहा कि मेरा पता नहीं किससे अफेयर है क्या, मैंने कहा देखो, जो करना करो, बिकॉज दैट इज योर लाइफ, यू हैव फुल फ्रीडम टू डू दैट लाइफ, बट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो। कल को अगर कुछ होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमको लेनी है। इफ हम वही तोड़ते हैं ना जो हम बोते हैं। So you don't need to change anything. You need to change your way of thinking. Ki how this, and raise your voice. If you really think that, okay, this is really not done, raise your voice. But first, be sure that you are grounded. You have got that center in you. But when we are not grounded, और मैं सब चीज के लिए रेस कर रही हूँ, मैं यहाँ से बैठ के बहुत सी चीज के लिए रेस कर सकती हूँ इंडिया में जो हो रहा है, पर am I helping it? If I am helping in some way, I will do that. Because अभी जो मैं बोल रही हूँ, yes, I feel like I am helping some people. Because I have worked with people, and I feel जो मेरे पास औरतें भी आती हैं, तो बहुत बार they come with distress in their marriage. But sometimes they have to see the distress is them, not the man. Yeah. So sometimes it is the men. हाँ, पर मदद तो तभी मिलेगा ना किसी को जब वो, और इतने आजकल तो पैसा भी किसी को नहीं देना, इतने यूट्यूब है, इतने सोशल मीडिया में कितने अच्छे अच्छे कंटेंट हैं, देयर आर सो मेनी गुड कंटेंट टू। पर अगर आपका दिमाग ही वहां नहीं है, तो आप तो वही कंटेंट देखिएगा ना कि कैसे किसी को धोखा दें, मारे पिटे और उसका सामान लेके भाग जाए। Absolutely right. Yeah, so this is also because if you are focused on your energy, you focus on your energy and you will create that. कहते हैं ना, जब बहुत पैसा जब लोगों को होता है, तो people do lot of charity work also, क्योंकि वो उधर डालते हैं, उधर बहुत से लोग करते हैं। Same thing with this vibration. When you have a very good vibration, आप जहां मुंह खोलिएगा, people would like to listen to you. सरस्वती बसी है आपके अंदर, because you are pure, you are talking with the truth and center within you, that this is what, and you have lived that life. तो जो भी लड़कियां ऐसा करती हैं, this is wrong, completely wrong. Definitely. पर इसका कर्मा है, I totally believe in that.
उसको हम नहीं कुछ कर सकते हैं। हम अगर मुझसे कहोगे तो हाँ, दिस इज रॉन्ग, डेफिनेटली दिस इज रॉन्ग, बट आई डोंट नो what else has gone through in her life. Why did she reacted that way? I don't know about the guy also. जो लड़का उसके साथ रहा, उसके साथ क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, आई डोंट नो एनीथिंग. इफ आई नो समथिंग देन मेरे रिलेशन में भी अगर ऐसा कुछ हो, आई विल नॉट कमेंट. I will not comment. I will just listen, because I'm just listening to one part, but I'm not listening to the other part. So it's Yeah. better not to just give judgment and see. But there are things which is wrong, which is wrong. You feel inside that this is not fair. Yeah. Yes. Right. Yeah. Ma'am, it was very nice Okay. to talk with you. एंड आई थिंक मुझे लगता है कि अभी हमें बहुत सारा जानना है आपसे, बहुत सारी चीजें। अभी हमने आपकी जितनी भी बात की है, आई थिंक हमने सिर्फ आपकी पर्सनल लाइफ की जर्नी से रिलेटेड आपकी थॉट प्रोसेस की बात की। अभी आपकी जो प्रोफेशनल आपको इतना नॉलेज है, तो डेफिनेटली एक पॉडकास्ट आगे हम उसके लिए भी करेंगे जो आपका पूरा नॉलेज है, बिकॉज आप योगा में एक सिर्फ पर्टिकुलर बेसिक योगा नहीं है, आपने बहुत एडवांस चीजें की है। मैंने जो देखा है उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो शायद कुछ चीजें अभी मैं भी नहीं जानती हूँ कि उसमें वो क्या-क्या पार्ट है। सो वो सारी जर्नी, वो सारी चीजें हम बिल्कुल जानना चाहेंगे जिससे लोगों को इंस्पिरेशन मिले। एंड अभी जो आपकी पर्सनल लाइफ की जर्नी है, मुझे लगता है कि लोग काफ़ी इंस्पायर होंगे। बीइंग फीमेल, मैं खुद काफ़ी इंस्पायर हूँ, इसीलिए मैंने आपको ऑफर किया कि मैम प्लीज़ कम एंड डू पॉडकास्ट विद अस। सो डेफिनिटली एंड राना को भी आज मैंने इन लोगों को बताया, तो राना मुझे लगता है कि आपको भी लगा होगा कि जो मैंने मैम के बारे में कहा था, मेरे ख्याल से मैंने तो बहुत कम कहा था, हाँ, बहुत कुछ राइट? सीखने को मिला मुझे आपसे। Yes. Thank So you. definitely it was good Thank you to for joining us. Thank you. and next definitely हम आपके साथ फिर करेंगे आगे। एंड अभी मैम आपके जो भी पेजेस हैं, एक बार मैं चाहूंगी कि आप उनका नाम, पॉडकास्ट का यूट्यूब चैनल एंड आपके फेसबुक इंस्टा पेज का एक बार नाम आप हमारे व्यूअर्स को बता दें। इंस्टा की लिंक हम जरूर आपकी इसमें शेयर करेंगे। एंड Yeah, my थैंक यू। Facebook page is Breathe Move Love, and then there is another page which is called Breathe Move Love Yoga, where I generally do a lot of yoga thing. And my main page is Archana Mohan. I write Archana as ARCHNA, not ANA. So ARCHNA Mohan. And I am in LinkedIn. So LinkedIn में Archana Mohan, again, if you would search, I will be there. YouTube में है Archana Mohan again. So it's very simple. My website is on the process. पहले भी 2-3 वेबसाइट मैं बनवा चुकी हूँ, लेकिन because every time I keep on changing things, तो मुझे उस accordingly चाहिए होता है. So it will be soon be there. So and Breathe Move Love, again the name would be Breathe Move Love Club, which so maybe during Okay. Navratri it would be launched. So then people would get more information from there. Yeah. Thank you so much, ma'am. Thank you. So It was nice. आज के वीडियो में इतना ही। ऐसे ही हर एक एपिसोड में आप लोगों के साथ नए पर्सनैलिटी के साथ मुलाकात कराएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। चैनल में नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और वीडियो का सबसे अच्छा पार्ट कौन सा था बिल्कुल कमेंट करके बताइए। Guys, please सो do मिलते हैं comment. नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। Bye bye.